हेलो एवरीवन। हमारे पिछले वीडियोस में आपने एल्काइल कॉपर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में देखा, जिसमें हमने उसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस यानी एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए कुछ अभी ऐसे रिएक्शंस जो ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स हमारा परफॉर्म करता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो होमोक्यूपरेट के फॉर्म में, हेट्रोक्यूपरेट के फॉर्म में, या फिर हायर ऑर्डर क्यूपरेट के फॉर्म में, या ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ कैटलिटिक अमाउंट का जो कॉपर सॉल्ट्स होता है, किस तरह से वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं या किस तरह से एडिशन रिएक्शंस को देते हैं, या ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरह से इनोन या कंजुगेटेड एस्टर के फॉर्म में वो रिएक्ट करता है। तो हम दिखाएंगे कंजुगेट एडिशन। आज एक्सप्लेन करेंगे कंजुगेट एडिशन के बारे में कि जो हमारा एल्काइल कॉपर रिएजेंट है वो जब रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड से सच टाइप ऑफ इनोन्स के फॉर्म में या कंजुगेटेड एस्टर के फॉर्म में, तो वो जनरली किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, और जो इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक ग्रुप का वो स्पेशली किस पोजीशन पर होता है। तो एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडिशन ऑफ ऑर्गेनो कॉपर एजेंट्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सच एज इनोन्स एंड कंजुगेटेड एस्टर्स generates enolates with concomitant introduction of an organic group at the beta position, especially the alkyl group which is related with the organocopper compound that is introduced at the beta position in alpha beta unsaturated group. So when this introduced at alpha beta positions only, what type of configuration products attain? The questions are arises here that after addition what type of products are formed, or what is the stereochemistry of the product. Then according to stereochemistry point of view, the stereochemistry of products is that if molecule is bicyclic system then addition is chemoselective. Involving the reaction is also less hindered double bonds of the dienone, and then it will be stereoselective. In that introduction of the methyl group occurs preferentially from the less hindered side of the molecule. तो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है मॉलिक्यूल की वो स्टीरियो सेलेक्टिव, कीमो सेलेक्टिव एंड समव्हाट रेजियो सेलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एल्काइल कॉपर रिएजेंट जो है वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो सिंपली हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, व्हाट इज कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन, और व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, सच टाइप ऑफ दिस। A regio selective reaction is one in which two constitutional isomer can be obtained as a product, but some of one is obtained than of the other. It means, suppose that if any reactant is converted into the product and there is formation of two products, in that cases only one is the major form, other is the minor form. Which is the major form? That is the main product. So we can say that the reaction is regio selective. Suppose that X is any reactant which is converted into Y plus M. Suppose that there is formation of Y plus M. दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. If Y is more than M, then we can say that the reaction is stereoselective, or M is more than Y, then we can also say that reaction is stereoselective, regioselective. This means the ambidentate nucleophiles have two attacking sites. ये reactions ऐसे molecules के थ्रू दिए जाते हैं जिनमें
दो अटैकिंग साइड प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम लें NCO, अगर हमने सपोज दैट एल्काइल साइनाइड या आइसोसाइनेट को लें RnCO, तो यहाँ आप देख सकते हैं RnCO में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन की तरफ अगर कार्बन जो है जुड़ा हुआ है तो हम सिंपली कहते हैं कि ये कार्बन से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है CN का तो हम कहते हैं इसे साइनेट। अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो हम इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। In most cases, nucleophile with two preferentially or potentially attacking atoms can attack with either of them depending on condition, and mixture are often obtained. Though this is not always the case. For example, the nucleophile NCO- usually gives only isocyanate and not the isomeric cyanate ROCN. When a reaction can preferentially give rise to two or more structural isomer ROCN or RnCO, but actually products are only one, the reaction is said to be regioselective. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल दिखाएं और इस एग्जाम्पल के थ्रू कहें कि रिएक्शन हमारा रेजियोसेलेक्टिव कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप एक है RnCO-, ओके, और ये RnCO बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करता है जो मेटल में है, सिंपली मेटल रिएजेंट में R से। R जो है ये दो तरह से जोड़ सकता है, ये RnCO भी बना सकता है या फिर ROCN भी बना सकता है, लाइक दिस। Here you see that this is the isocyanate, ये isocyanate है हमारा, and this is one type of isomeric form, but this is not isomeric form. In this way we can say that this nucleophile gives two products, but one is in the major form, so the whole reaction will be regioselective. इसलिए पूरा रिएक्शन जो होगा वो हमारा रेजियोसेलेक्टिव होगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने मैनिच रिएक्शंस देखा होगा, तो मैनिच रिएक्शन भी एक तरह से हमारा रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल हम रेजियोसेलेक्टिव का दें तो डेल सेल्डर रिएक्शन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेजियोसेलेक्टिव का डेल सेल्डर रिएक्शन में। जब यहाँ पर 1,3-डाइन का जो है डाइनोफाइल से रिएक्शन कराया जाता है, और ये डाइनोफाइल हमारा एल्कीन भी हो सकता है या मैलिक एनाइडाइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस आते हैं, आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पर्टिकुलर इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में देखा जाता है। बट देयर इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट in that cases, so we can say that this artho or para product is the dominant and the reaction will be regioselective. In some cases new stereoisomeric terms are also involved in the form of stereospecific. So there is very minute differences between regioselective and stereospecific. According to stereospecific reactions point of view, if the reactant can exist as stereoisomer and each stereoisomeric reactant leads to different stereoisomeric product or a different set of stereoisomeric product. Suppose that मान लीजिए हमारा एक R आइसोमर है, एक S आइसोमर है, R एक दूसरा प्रोडक्ट देता है, एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट देता है, और जो देता है सिंगल प्रोडक्ट ओनली स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, देन इन दिस कंडीशन वी से दैट द रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस. So in this way it has been seen that all stereospecific reactions are stereoselective. जो हमारे सारे स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस हैं दे आर स्टीरियोसेलेक्टिव, बट all the stereoselective reactions are not stereospecific.
So in case of stereoselective reactions, like regioselective, stereoselective is a similar term, but in this case preferentially formation of stereoisomer occurs rather than a constitutional isomer. यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी दो तरह की होती है, यानी एक आइसोमेरिज्म अगर देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है और एक स्टीरियो आइसोमर होता है। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं रिएक्शन इज द रेजियो सेलेक्टिव। लेकिन अगर वो स्टीरियो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो हम कहते हैं रिएक्शन इज द stereo selective. If a reaction that generates a carbon-carbon double bond or a chirality center in a product leads to the preferential formation of one stereoisomer over the other, it is called a stereoselective reaction. For example, X is converted into Y plus M. इसके पहले regioselective में भी आपने देखा था X is converted into Y plus M, where Y is more than M, but Y and M both are stereoisomer. But in case of regioselective, Y is also more than M, but Y and M both are constitutional isomer. So in stereoselective reaction, the terms stereoisomers are used. Both the products will be in their stereo form, in stereoisomeric form. But in case of regioselective, the product will be in their constitutional or structural isomeric form में होने चाहिए। जो तीसरा हमारा है chemoselective. This is the new terms which is related with organic transformations or selective organic transformations. This chemoselective reaction may be defined as a reaction in which one functional group, here functional groups are described, one functional group within a molecule reacts leaving other potentially reactive functional groups unaltered is called a chemoselective reaction. Such a reaction is said to display chemoselectivity. In organic reactions, reactivity of the attacking species and the selectivity of the place of attack are related. यानी जो अटैकिंग स्पीसीज की रिएक्टिविटी होती है और कहाँ पर ये अटैक करेगा, उस सिलेक्टिविटी प्लेस जो होता है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है. इफ द अटैकिंग स्पीसीज इज मोर रिएक्टिव it be less selective and the yields will be determined by the probability factor as well as reactivity of the reactivity of hydrogen atom. While if the attacking species is less reactive and more selective, the yield of the product is governed exclusively by reactivity of hydrogen atom. What happened in this case? Here you see that one bicyclic ketone is treated with dialkyl copper lithium. What happens here? Double bond from which double bond? Which is related, which is nearer to the मिथाइल ग्रुप. आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड हुआ है उसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड लगा हुआ है. तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप के नज़दीक डबल बॉन्ड है, दैट उस डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है एल्काइल ग्रुप का. और कहाँ पर? यहाँ पर एबव द प्लेन है. इस केस में यहाँ एबव द प्लेन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेस हैंडेड साइड से अटैक किया है. और इस तरह से ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर 91%. देन वी सी दैट वी कैन से दैट द रिएक्शन इज stereoselective. Now in both the cases the chemoselective selectivity का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए इस केस में जनरली होता क्या है कि जो रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टिव रिएजेंट है यानी उसका जो फंक्शनल ग्रुप है
वो कहाँ अटैक करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, ये मायने रखता है कि अगर मान लीजिए वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक कर, जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शनल ग्रुप हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो और जिस पोजीशन पर अटैक करने वाला होता है वो दैट पोजीशन इज नॉट मोर सेलेक्टिव, उससे पोजीशन जो है हाईली सेलेक्टिव नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे एक जनरल एग्जांपल हम आपको बताएं, तब इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि एल्केन का CH3 CH2 CH2 CH3, ये जनरली है ब्यूटेन। ओके, इस ब्यूटेन का अगर हम क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन कराएं Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में, तो इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें फॉर्मेशन हो सकती हैं कि क्लोरीन जो है वो CH3 से भी जुड़ सकता है और CH2 से भी जुड़ सकता है, यानी पहले कार्बन के हाइड्रोजन को भी ये रिप्लेस कर सकता है, दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा बनेगा 1 क्लोरो यानी 1 डिग्री और दूसरा बनेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री के फॉर्मेशन में जैसे ही 1 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर होता क्या है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि ये सेंटर जो है दैट इज लेस सेलेक्टिव, ये जो है लेस सेलेक्टिव है और क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए ये उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है जो हाईली रिएक्टिव होता है। तो सेकेंडरी ग्रुप का जो हाइड्रोजन यानी सेकेंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसका, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होगा, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और ये प्राइमरी प्रोडक्ट जो है हमारा माइनर फॉर्म में होगा। और इस तरह से यहाँ नियर अबाउट 72 और 28% इल्ड जो है आएगी वो प्रोडक्ट का। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ले लें, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लें CH3 CH2, जिसमें CH से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और क्लोरीनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहले कार्बन से, यानी यही चीज अगर हम इस तरह से दिखाएं समवट CH3 ट्वाइस CH3, यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका कार्बन फर्स्ट और ये हो गया आपका कार्बन सेकेंड। ओके, और यहाँ पे 2 एल्काइल जुड़ा है। तो जब यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कराएं सेम रिएजेंट सेम टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा हमारा वो किसको इजिली रिप्लेस करेगा, वो इस पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन को इजिली रिप्लेस करेगा देन दी सेकेंड। क्यों करेगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन जो है हमारा जो पोजीशन है वो लेस रिएक्टिव है, दिस इज नॉट सेलेक्टिव। हाइड्रोजन भले ही मोर रिएक्टिव लेकिन दिस इज नॉट सेलेक्टेड पोजीशन। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन को दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हैं CH3 CH3, और जिसके कारण होता क्या है वहाँ पे एक स्टीरिक स्टैंड जो मेंटेन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मेशन होता है हमारा वो सिंपली पहले कार्बन से फर्स्ट कार्बन से ज़्यादा हेलोजिनेशन होता है, यानी वहाँ 64% इल्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से रिएक्शन जो है हमारा वो कीमो सेलेक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये देखा जाए कि कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन in which one functional group within a molecule reacts leaving other potentially reactive functional group, क्या होने चाहिए, reactive functional groups होने चाहिए unaltered, is called a chemoselective reaction। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है मिथाइल के बगल का, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इजिली उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और यहाँ 91% इल्ड का फॉर्मेशन करता है। अगला रिएक्शन है हमारा
कि एडिशन ऑफ ऑर्गेनोक्यूपरेट टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड is no less complex than that for substitution reaction. So on the basis of current information, conjugate addition of lithiocopperate to a alpha beta unsaturated ketone and ester may proceed via a initial reversible copper first olefin lithium association, which then undergoes oxidative addition followed by reductive elimination. यानी इस केसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एलिमिनेशंस रिएक्शन एक साथ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि ओलिफिनिक बॉन्ड्स, ओलिफिनिक माने डबल बॉन्ड से ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम हमारा यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है इस तरह, और जो लिथियम है, लिथियम वो ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सिंपली रिएक्शन कुछ हमारा इस तरह से होता है, जैसे अगर हम यहाँ दिखा दें डबल बॉन्ड ओ ऐसे, और यहाँ हो जाए डबल बॉन्ड इस तरह समवॉट, तो जो अल्काइल ग्रुप यानी कॉपर के साथ है, चूंकि ये नेगेटिवली पार्ट होता है, तो ये कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पर यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ आता है ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ऐसे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन हो जाता है निगेटिवली चार्ज, इसलिए लिथियम जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। यहाँ बॉन्ड डीलोकलाइजेशन नहीं दिखाया गया है इस रिएक्शन में, तो सिंपली केवल एडिशन दिखा दिया गया है कि ऐसे होता है। फिर जनरली क्या होता है, देयर इज 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्टिंग होती है, और 1-2 शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर एल्काइल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है और एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है इस तरह से। तो एक तरह से देखा आपने कि यहाँ पर क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, एक तरह से एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है, तो एल्काइल लिथियम का एलिमिनेशन हो जाता है। तो जो कॉपर एल्काइल लिथियम है वो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन पर जुड़ेगा तो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से ये अटैक करता है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये। अब नेक्स्ट इसका फीचर्स है, conjugate addition of organocopper reagents with large steric requirements and or when there is steric hindrance at the reaction center of the enone may be difficult। अगर मान लीजिए इनोन लिया जाए, इनोन का मतलब होता है कि जब C डबल बॉन्ड C से CH3 एक CH ग्रुप जुड़ा रहे और वहाँ C से फिर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, तो से एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखा जाए, C सिंगल बॉन्ड C से यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ऐसे, ओके, और यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप जुड़ा है ऐसे, ओके, यहाँ पर होता, या फिर यहाँ इससे हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसमें होता क्या है कि ये कार्बन अपने इस बॉन्ड को यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देता है और यहाँ से डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है C डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसे कहते इन, इसे कहते ओन, इनोन, तो ये हमारा एक इनोन पार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है, जो लार्ज स्टेरिक हिंडेंस जहाँ पर होता है उस साइड से जो अटैक होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे ट्राई अल्काइल सिलिकॉन हैलाइड है, ये जब कॉपर रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है तो एक्टिवेटिंग कार्बोनिल ग्रुप साइड से, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अल्काइल डाई ब्यूटाइल कॉपर लिथियम, तो डाई ब्यूटाइल ग्रुप जो है, डाई ब्यूटाइल चूंकि अल्केन ग्रुप है निगेटिवली चार्ज होगा, तो ये CH3 के पास वाले कार्बन पर अटैक करता है इस साइड से, और फिर ये बॉन्ड आपका फर्दर डीलोकलाइज हो जाता है, यानी यहाँ अटैक होता है और इस तरह से डीलोकलाइज होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ, और इस तरह से जो ट्राई मिथाइल सिलेन आयन है वो सीधे यहाँ ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाता है और यहाँ फॉर्मेशन करता है 99% इल्ड जो है देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्राई मिथाइल सिलेन हाइड्रोजन का जो एडिशन है
वो डबल बॉन्ड से नहीं हो पाता है, यानी हाईली डिफिकल्ट होता है। हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस the enolate initially form is trapped to give the beta di substituted silylenol ether in 99% yield, and hydrolysis of the silylenol inter regenerates the carbonyl group। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो देख कि यहाँ पर देखिए फिर से रीजनरेशन हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप का। अगला रिएक्शन है इसका रिएक्शन ऑफ बीटा बीटा डाई सब्सटीट्यूटेड इनोन। अगला जो इनोन है वो मेरा बीटा बीटा डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो बीटा पोजीशन पे डबली बॉन्डेड होगा और डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप भी होगा। जब इसका ट्रीटमेंट ऑर्गेनोक्यूपरेट से कराया जाता है तो देयर इज नॉट वेरी सक्सेसफुल reactions proceeds because of hysteric of the double bond। in this case what happened, alkyl copper lithium के साथ बोरान ट्राइफ्लोराइड और इथॉक्साइड यूज किया जाता है, और जो इन द फॉर्म ऑफ लेविस एसिड जो पोलराइजेशन क्रिएट करता है, एक्टिवेट करता है कीटोन को कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और रिएक्शंस हमारा प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बीटा कीटोन दिया गया है, यहाँ पर बीटा सब्स्टिट्यूटेड इनोन है, ये है बीटा सब्स्टिट्यूटेड इनोन। यहाँ डाइब्यूथाइल कॉपर लिथियम बोरान ट्राइफ्लोराइड और ईटीओ के प्रेजेंस में एल्काइल ग्रुप कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये कहाँ जा, ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ जुड़ता है इस साइड पर, ये दोनों एल्काइल, ये देखिए हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ करके इस तरह से जुड़ता है। तो रिएक्शन ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये होता है कि ये पोलराइज कीटोन को जो है पोलराइज कर देता है, और इसी कारण इस तरह का यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो द ग्रिग्नॉड एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड आर मिक्सचर ऑफ मैग्नीज क्लोराइड एंड कॉपर आयोडाइड अंडरगो 1,4 एडिशन टू हिंडर्ड इनोन्स, यानी 1,2 एडिशन की जगह यहाँ पर 1,4 एडिशन होता है कि अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर आयोडाइड का यूज किया जाता है। तो और आप देख सकते हैं कि देयर इज एडिशन ऑफ 1,4 एडिशन 1 and 4 1 2 3 4 hindered enones undergo 1,4 addition to less hindered enone। you have you can see in this example, but this is related with the Grignard agent। next reaction is the reaction of dialkyl cuprate with alpha beta unsaturated aldehyde result in the preferential 1,2 addition। अभी ऊपर आपने देखा कीटोन से हो रहा था तो 1,4 एडिशन के थ्रू, लेकिन ये जब एल्डिहाइड से होता है तो यहाँ पर 1,2 एडिशंस होता है, स्पेशली इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हियर यू सी दैट one is the alpha beta unsaturated aldehyde which undergoes 1,2 addition by means of trialkyl selenium chloride conjugate addition previously furnished after hydrolysis of the resultant silylenol ether the saturated aldehyde, then there is formation of saturated aldehyde। What happens in this case when dibutyl copper lithium is taken place, then this butyl group is attached with the alpha position। अल्फा पोजीशन मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अल्फा पोजीशन है, और जब यहाँ अटैक करता है तो ये बॉन्ड फर्दर डिलोकलाइज हो जाता है, कार्बन और कार्बोनिल और कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। और नेक्स्ट our TMCl groups are attached here, and after hydrolysis this is eliminated and there is formation of once again saturated aldehyde। Then here the unsaturated aldehyde is converted into saturated aldehyde by means of dialkyl copper lithium।
The next reaction one, in this case conjugate addition of dialkyl cuprate to beta substituted alpha beta unsaturated acid and ester give low yields. Addition of boron trifluoride etherate to certain dialkyl cuprate and higher order cuprates enhances their reactivity in Michael addition to conjugate acid and ester. This is also 1-4 types of addition. Here copper reagents are used, that is Gilman reagents. What happens here? Here addition takes place through which side? Through this side. Butyl group is attacked at this position, and here CO2, this bond goes on this carbon and this bond goes to this carbon, and here the yield may be 52% and 1%. What happened in this case? If butyl copper and boron trifluoride is taken, the yield will be 52%, but if dibutyl copper lithium is taken, then the yield will be 1%. Next reaction है reaction of organocuprates in form of 1,4 addition, and there will इनोलेट ट्रैपिंग, यानी इनोलेट की ट्रैपिंग हो जाती है इस केस में। और इनोलेट में जो स्पेशली ट्रैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। इसको हम टेंडेम टाइप रिएक्शंस कहते हैं, टेंडेम टाइप, जिसमें ट्रैपिंग हो जाती है 1,4 माइनर के थ्रू। तो ये ऑक्सीजन ट्रैपिंग होती है या फिर कार्बन ट्रैपिंग होती है, ऑक्सीजन या कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप में आप देखे होंगे CO में ऑक्सीजन और कार्बन। तो यहाँ पे जो गिलमॉन रिएजेंट है ये ट्रैप्ड होता है आइदर ऑक्सीजन और कार्बन। तो आइए 1 by 1 हम समझते हैं कि ऑक्सीजन ट्रैपिंग क्या होती है और कार्बन ट्रैपिंग क्या होती है। इनिशियली टेंडेम 1,4 addition reaction is the one of the fundamental contribution of organocopper chemistry to organic synthesis is the ability to transfer ligands in 1,4 manner to alpha beta unsaturated carbonyl compounds to produce enolate anion in a regioselective manner. These may be trapped by variety of electrophiles in tandem type reactions. The enolate produced from conjugate addition of organocuprate to alpha beta unsaturated carbonyl compounds possess two nucleophilic sites reacting either at the oxygen or the carbon terminus. Electrophiles having a high affinity toward oxygen such as chlorosilane and phosphochloridates tends to give oxygen trapping products, whereas alkyl halide, aldehyde, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, हैलोजन, ये सारे जो हैं सी ट्रैपिंग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर इनोलेट की ट्रैपिंग की गई है, तो एक साइक्लोहेक्सिनोन ये डाइअल्काइल कॉपर के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए साइक्लो कीटोन है, और अल्काइल ग्रुप लेस यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड फर्दर जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो आप देखिए कॉपर लिथियम ये दोनों जो है ऑक्सीजन से ट्रैप्ड हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हियर इज ओ ट्रैपिंग एंड सी ट्रैपिंग। अगर ओ ट्रैपिंग होगा तो जो डबल बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन वाले कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ फर्दर होगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। और अगर सी ट्रैपिंग होता है तो कार्बन और कार्बोनिल का ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाता है और इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ जुड़ता है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ एग्जांपल दिया गया है ओ ट्रैपिंग एंड सी ट्रैपिंग। ओ ट्रैपिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या है, ट्राइल्काइल सिलेन है हमारा, या फिर फास्फोरिल टाइप का कंपाउंड है जो फास्फोरोक्लोराइडेट्स है। तो इस तरह से ऊपर आपको ये बताया ही गया है कि सी ट्रैपिंग और ओ ट्रैपिंग में ज़्यादातर
ओ ट्रैपिंग वाले वो होते हैं जिसमें क्लोरोसिलेन होता है, फास्फोरोक्लोरिनेट्स होता है। और सी ट्रैपिंग में जनरली वो होते हैं जैसे एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, हाइलोकार्बोनिल कंपाउंड्स, हैलोजेंस, ये सारे होते हैं जो सी ट्रैपिंग करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑक्सीजन ट्रैपिंग के। इनोलेट जनरेट्स फ्रॉम इनोन बिलो reacts at oxygen with chlorotrimethylsilane in the presence of triethylamine to produce the trimethylsilyl enol ether। अब मैं यहाँ देखा कि यहाँ पे जो ट्राईमिथाइलसिलेन लिया गया है, चूँकि यह ऑक्सीजन ट्रैपिंग की ये क्वालिटी होती है कि यहाँ पर सिलेन ट्राई एल्काइल सिलिल क्लोराइड जो है यहाँ पे ट्रैप्ड होगा। तो इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि सिलिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन पर जाकर के ट्रैप्ड हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ इसकी ट्रैपिंग हुई है। ठीक, और जो यहाँ नेक्स्ट अनसेचुरेटेड ग्रुप है हमारा, वो यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। और रिएक्शन हमारा रेजियो सेलेक्टिव है। देयर इज वन सिलेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। Next one example here also you can show that by the use of phosphate type of compounds that is trapped with enolate, and there is formation of regioselective or regiospecific type formation of alkene takes place. In these cases also reaction is the O-trapping, but here you see that carbon trapping. What type of carbon trapping? What type of molecule or electrophile are trapped here? I have already told you before that halogen containing carbonyl groups, alkyl groups, all trapped at C position. So this is the very common reaction in which the Gilman reagent is treated with alpha beta unsaturated ketone or enones. Here you see that the attacking reagent is alkyl, allyl, propargyl, benzyl and alpha halocarbonyl compounds or aldehydes, all these. And the enolate obtained from conjugate addition of homocuprates are copper catalyzed Grignard reagent undergo aldol type of condensation with aldehyde in the presence of zinc chloride to give stereomeric mixture of aldol products. Here you see that the alkyl group is trapped at the, that is n-butyl. गिलमॉन reagent का जो n-butyl है, NBU जहाँ लिखा है डैश बॉन्ड पे जो दिखाया गया है, ये यहाँ पर C पर आकर के ट्रैप्ड हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो 1,4 एडिशन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, generally regioselective as well as chemoselective, and which type of factors controlling this stereosymmetry of conjugate additions? There is the mixture of isomers which are produced, but generally one isomer predominates over the other. Both steric and electronic factors play an important role. So generally you have seen in the Michael type of addition have the product like and chair like transition state, there is formation that will give the regioselective type of reactions. Example below the stereoselective regions, anti-parallel attack by the nucleophilic CH3 is favored over parallel attack. यानी 1,4 एडिशंस में ये देखा जाता है कि जो अटैक होता है रिएजेंट का वो हमेशा एंटी पैरेलल होता है, यानी जिस तरफ से ग्रुप को जहाँ डबल बॉन्ड होता है, अगर उस डबल बॉन्ड के साइड में कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसके हमेशा एंटी पोजीशन पे, जैसे एक सिंपल रिएक्शन दिखाया गया है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन का यहाँ पर डाई एल्काइल कॉपर लिथियम इथॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एल्काइल जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ पर अटैक कर रहा है, एंटी अटैक कर रहा है, यानी CH3 यहाँ जुड़ा लगा हुआ है। हियर यू सी दैट हियर इज CH3 आर एडेड। यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 की एंटी जा कर के जुड़ता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ
5% यील्ड देता है। और अगर यही दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल अटैक करते हैं तो यहाँ पे यील्ड जो है ये 5% हो जाता है। तो 1,4 एडिशन हमारा जो है, अगर कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो भी अटैक होगा वो हमेशा एंटी पैरेलल होगा। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ओवरऑल विच आर गिवन बाय द reaction between any type of organic molecule with the Gilmore reagents, then in all these cases you saw that the stereochemistry of product will be regioselective, stereoselective and chemoselective, so on.